Hi. So today I'm going to take up a few graphs and they have been asked in the previous examinations and हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं and what is the fundamental basics of these graphs. So I'm sure this will be very helpful for you, and if you know them, you can revise them. If you do not know them, then you can gain some knowledge from this video. So hi, this is Dr. Deepika from Simply Pharmacology and let's get started. तो जो पहला ग्राफ है, द फर्स्ट ग्राफ was given in one of the competitive examinations, and this graph was plotted, and you can see there are two graphs, therapeutic effect graph and a toxicity graph, and this is about the dose and the percentage of animals. The question asked was calculate the therapeutic index of the drug from the given dose response curve. So यहाँ पे आपको क्या करना है, calculate therapeutic index. So एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है वो हमेशा हम एनिमल्स में करते हैं, और थेरेपेटिक रेंज होता है दैट इज इन द ह्यूमंस, बिकॉज थेरेपेटिक इंडेक्स का इसमें आपको फॉर्मूला आना चाहिए. थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज LD50 डिवाइड बाय ED50. सो व्हाट डोज जो है ऑफ अ ड्रग इज किलिंग 50% ऑफ द एनुअल पॉपुलेशन, विच इज 50 LD50. And ED50 is the what dose is showing a particular effect in 50% of the population. ठीक है, so that is your ED50. So therapeutic index of formula है LD50 over ED50, and this is done in animals, not done in humans, because we cannot. How can we actually calculate? हम डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे जो lethal होएगी, जो मारेगी? We cannot do that, right, in the human beings. सो इसमें फॉर्मूला लगाए. सो व्हाट, इस ग्राफ से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका दिस इज गिवन लाइक, तो दिस इज अ 50% ऑफ एनिमल्स. कितने डोज पे 50% ऑफ एनिमल्स में दैट इफेक्ट आया है, एंड दिस इज समवेयर हियर. सो लेट्स अज्यूम ये 6 है, राइट? और यहाँ पे कितनी डोज में 50% ऑफ एनिमल्स में LD50 में 50% ऑफ एनिमल्स हैव डाइड, लीथल इफेक्ट आया उसमें, that is around 64. So simple आपने क्या करना है, so this dose 64, because ये आपका डोज दिया है, you have to divide by 60 and this would become around 10.6 or something would be the answer. So आपको जो options आएंगी उनमें से you select the nearest possible answer. So most of the times it would be like मेरे ग्राफ बनाने में it might have come here or there, but you will get something like 4 आएगा या 8 आएगा, कुछ ऐसे वैल्यूज आएंगी. ठीक है, so therapeutic index, important to know that how to calculate therapeutic index. So remember LD50 divided by ED50. और जो therapeutic range होता है that is important, और वो हमारे लिए humans में important होता है, human beings में. So किसी भी डोज का अगर narrow range है या wider range है, that is more important for us to know. So for example, there is a drug called as digoxin. It has a narrow therapeutic range. क्यों कहते हैं? Because 0.8 से लेके 2.0 जो इसकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही रहना चाहिए. सो दिस अ वेरी स्मॉल डिफरेंस कि इतना इफेक्टिव है, और इससे अगर ज़्यादा जाएंगे, स्पेशली अगर हम 2.4 से ज़्यादा चले जाएंगे, तो इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स, अरिथमियाज एंड ऑल दोज स्टार्ट अपीयरिंग. सो दे हैव अ वेरी नैरो थेरेपेटिक. So this is important, and similarly drugs like lithium, phenytoin, they all have a narrow therapeutic range. So ऐसी ड्रग्स को क्या करते हैं, to check whether we are giving the, because it is very important कि हम इधर ना जाएं और इधर ना जाएं. अगर हम कम जाएंगे तो इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, अगर हम ज़्यादा जाएंगे तो टॉक्सिसिटी आनी शुरू हो जाएगी. सो इसके लिए हम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं ऐसी ड्रग्स की, राइट? सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द थेरेपेटिक इंडेक्स and the therapeutic range. Therapeutic range हम in humans, therapeutic index is done in animals, and this is the formula that you should know, because ये exams में आता है, आपको ये formula apply करना है, and easy है to solve the question, right? Let's go to the second graph. Second graph है, these are the 3 graphs shown by 3 different types of drugs. ठीक है, so हमने प्लॉट किया है log dose को एक तरफ और response को एक तरफ. अब ये A का है, B है और C है, 3 different drugs are there, और आपको कमेंट करना है on the efficacy and potency of these drugs. कमेंट करने का मतलब है आपको बताना है. सो अगर MCQ होगा, सो ऑप्शंस विल बी गिवन, और अगर इफ़ यू समबडी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रिपेयर करे उनको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसको कमेंट करना है. तो कमेंट का मतलब क्या आपने करना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द एफिकेसी एंड व्हाट इज पोटेंसी. सो एफिकेसी में पता है, इट इज़ द maximal response which is produced by the drug.
and potency is the dose of the drug. So what is that minimum dose of the drug which is required to produce that particular response? So for example, हम कहते हैं ड्रग बी और सी, तो जो एफिकेसी है दिस इज योर मैक्सिमल रिस्पॉन्स, ये हो गई आपकी एफिकेसी. सो लेट्स कंपेयर द एफिकेसी. पहले हम कमेंट करते हैं. सो वी कैन से ड्रग बी इज as efficacious as drug C, but drug A is less efficacious as compared to drug B and C. So efficacy wise अगर हम comment करें, efficacy drug B equals to drug C, but both are greater than, more efficacious than drug A. Now let's talk about the potency. ठीक है. पोटेंसी का मतलब होता है अगर अब हम एफिकेसी दोनों की सेम है, लेट्स से दोनों एनाल्जेसिक हैं, तो अगर सेम टाइप का है, दोनों हेडेक ठीक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो कौन सी ड्रग स्मॉलर डोज पे हेडेक ठीक कर रही है, कौन सी ड्रग थोड़ी ज़्यादा डोज पे उतनी हेडेक ठीक कर रही है. तो अगर ये डोज यहाँ पे प्लॉट किया गया है, तो आप देखो अगर हम इसको ये प्लॉट करें यहाँ पे, सो लेट्स एज्यूम यहाँ पे 0 डोज है, then 2 है, then 4 है, 6, 8, 10 etc. So we can say at the dose of 4 milligrams इसने ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया और सेम रिस्पॉन्स सी ने प्रोड्यूस किया बट एट द डोज ऑफ 10. ठीक है. सो 4 milligrams of drug B produces the same response as a 10 milligram of drug C. तो हम अगर पोटेंसी की बात करें, what is the dose of the drug which is required to produce that same response? So we say here that because drug B requires a lesser dose to produce the same response, so drug B is more potent than drug C. ठीक है. ज़्यादा उसमें क्षमता है कि वो थोड़ी सी ही डोज में it will actually produce the same response. अब रह गई बात ड्रग ए की. ड्रग ए पोटेंसी की बात करें, एफिकेसी हमने कम की, पोटेंसी हम इसमें कंपेयर, वी कैन नॉट कॉमेंट मच ऑन पोटेंसी. अगर हम सिर्फ पोटेंसी देख रहे हैं तो ए इज द मोस्ट पोटेंट, बट रिस्पॉन्स भी नहीं है उसका, रिस्पॉन्स इज नॉट मैक्सिमल. सो वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन we cannot compare the potency of A with B or C because the response is also less. So it is अगर लेट्स से ये 1 है, इस पे इसने सेम ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया होता है यहाँ तक, तो हम कहते हैं ड्रग ए इज मोर पोटेंट एज कंपेयर टू बी एंड सी. बट हियर व्हाट इज देयर, वी कैन ओनली से इट इज लेस एफिकेशियस. पोटेंसी को वी कैन नॉट कॉमेंट हियर ऑन द ड्रग ए. सो बी वेरी क्लियर अबाउट दैट. ठीक है. ऑलराइट, देन द ग्राफ 3. नाउ दिस ग्राफ इज अनदर ग्राफ, अगेन परसेंटेज रिस्पॉन्स अगेंस्ट द डोज. ठीक है. ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये है सिर्फ हमने एक ड्रग दी है विच इज़ एन एगोनिस्ट, एंड जो दूसरा ग्राफ है वो आया है जब हमने साथ में एक और वाई ड्रग ऐड कर दी और फिर हमने एगोनिस्ट को ऐड किया. तो क्या रिस्पॉन्स आया है कि जो ये ग्राफ है इट हैज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड. ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ड्रग वाई बाय लुकिंग एट द अबव डोज रिस्पॉन्स कर्व. So you have to identify the drug Y. इसका मतलब अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे whether what kind of antagonism, because right side shift है, so what kind of antagonism is shown by this Y. See, what we have to see here is shift towards the right, so it is an antagonism because पहले यही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा था लेट्स से 2 मिलीग्राम से, अब यही रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है लेट्स से 6 मिलीग्राम से. ठीक है. सो इस ड्रग की जो मैक्सिमल रिस्पॉन्स तो आ गया, वी मैक्स तो सेम है, बट द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इट नीड्स अ स्लाइटली हायर डोज. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वाई. तो वाई ने ऐसा क्या किया कि अब हमें ज़्यादा एगोनिस्ट देना पड़ रहा है टू प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स. सो दिस इज अ peculiar property of antagonism which is called as कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म. ठीक है.
कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म का मतलब क्या होता है कि लेट्स से दिस इज अ रिसेप्टर हियर, ठीक है, एंड वी हैव अ एगोनिस्ट जो यहाँ पे लगता है एंड द रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड. नाउ वी से देयर इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट एंड लेट्स से दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट. सेम साइड पे लगा, बिकॉज कॉम्पिटिशन हमेशा एक चीज के लिए होती है. अगर एक ही कुर्सी पे दो लोगों ने बैठना है तो कॉम्पिटिशन है. कुर्सी का कॉम्पिटिशन सबको पता है. अगर दो कुर्सियां हैं और दो लोग हैं फिर तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है. सो कॉम्पिटिशन के लिए सेम साइड, सेम चीज के लिए हम कंपीट करते हैं. सेम फर्स्ट पोजीशन के लिए इतने लोग कंपीट कर रहे होते हैं. अगर हम 10 फर्स्ट पोजीशन रख देंगे तो 10 बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं. तो कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं उस क्लास में, ठीक है. कॉम्पिटिशन क्या होता है, हमें रेस में एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, तो कॉम्पिटिशन फॉर द फर्स्ट. सो समथिंग हैज टू बी कॉमन जिसके लिए वो कंपीट कर रहे हैं, राइट. सो ये साइट है, इसके लिए दो चीजें कंप्लीट कर रही हैं, एक ही एंटागनिस्ट और ये एगोनिस्ट. सो जब आप एंटागनिस्ट देते हो तो क्या होता है कि जो एगोनिस्ट यहाँ पे लग नहीं सकता, तो ये एंटागनिस्ट जाके यहाँ पे फिक्स हो जाता है. सो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव फॉर द सेम एंटागनिस्ट, एंड जो आपका एगोनिस्ट है इट कैन नॉट नाउ अटैच. बट what happens is, so I always give this example कि there is one seat, a very important seat that everybody wants to sit there. So पहले एक बच्चा बैठा हुआ था, ठीक है, तो अब दूसरा बच्चा आके उधर बैठ जाता है, तो पहले वाला बच्चा बैठ नहीं सकता. तो ये पहले वाला बच्चा है जो वहाँ पे बैठ नहीं सकता. अब जो बैठा हुआ है बच्चा वो थोड़ा सा हेल्दी है, ठीक है. तो जो बच्चा बेचारा ये खड़ा हो गया है, ये उसको धक्का देके नहीं निकाल सकता, उठा सकता सीट से. तो क्या करता है वो, कैसे उठाए उसको, हाउ टू रिमूव दिस, ही गेट्स लॉट ऑफ फ्रेंड्स. सो क्या हो रहा है यहाँ पे, एगोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. देखो सिंथेसिस तो एगोनिस्ट का बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो और एगोनिस्ट यहाँ पे बढ़ी जा रहे हैं. अब वो बच्चा बहुत सारे फ्रेंड्स ले आया. अब वो फ्रेंड्स मिलके वो जो एक थोड़ा सा भारी भरकम बच्चा बैठा हुआ था सीट पे, उसको धक्का दे देगा. तो धक्का देगा, क्या होगा, वापस से ये बच्चा यहाँ पे बैठ जाएगा. सो व्हाट दे डू, व्हेन द डोज ऑफ द एगोनिस्ट इंक्रीजेस दे कैन डिस्प्लेस द एंटागनिस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइट, ठीक है. सो अब इसने इसको कर देना है डिस्प्लेस. तो ये धक्का देके इसको उसने कर दिया बाहर और वापस जाके ये यहाँ पे लग गया. सो दिस इज कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म. सो इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है. नंबर 1, इट बाइंड्स टू द सेम साइट, and number 2, this block can be overcome. और इसकी हम टर्मिनोलॉजी कहते हैं surmountable. These are two important properties of a competitive antagonism. और क्या होता है जब, तो इसको बहुत सारे बच्चे लगे to produce or to make this first child sit there, ठीक है. So lot of dose is now required और lot of people are required to get the same. अब बैठ तो गया वापस, तो रिस्पॉन्स तो वापस इसका सेम आ जाएगा. बट पहले ये एक अकेले आराम से खुद ही वो सेल्फ सफिशिएंट खुद कर रहा था, पर अब उसको बहुत सारे बच्चे लगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स बैठ गया है वो वहाँ पे, पर अब उसको 2 की जगह लगे 6, फॉर एग्जाम्पल 6 बच्चे लगे उसको हेल्प करने में टू सिट देयर. सो दिस ग्राफ इसमें रिप्रेजेंट होता है वाई इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट, बिकॉज द रिस्पॉन्स, अल्टीमेट रिस्पॉन्स, वी मैक्स जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है उसका वो सेम आ गया है, बट डोज बढ़ानी पड़ गई है उस रिस्पॉन्स के लिए, बिकॉज वो एंटागनिस्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस मोटा गाय वो सैट हियर, राइट. सो उसकी वजह से लॉट ऑफ डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम रिस्पॉन्स. तो इसलिए दिस इज अ वेरी पेक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट कि जो ग्राफ है वो राइट को शिफ्ट होता है. इसका मतलब ज़्यादा डोज चाहिए सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए. अगर ये नॉन कॉम्पिटिटिव होता तो क्या होता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव तो वो साइट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है. तो चाहे उस पर दोबारा वो, अगर उसकी कुर्सी ही टूट गई तो बैठने की जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है. सो नॉन कॉम्पिटिटिव हथौड़ा मार के उस कुर्सी को ही तोड़ देगा जहाँ पे वो बैठा हुआ था. तो कॉम्पिटिटिव जो एगोनिस्ट है तो सीट ही नहीं बची, ठीक है. वो बैठना चाहता है पर सीट ही नहीं है. सो वो रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, बैठने का उसको मजा आएगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, ठीक है. तो वो अगर नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म है तो उसमें ग्राफ थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा. इसका मतलब अगर ये ग्राफ में लेट्स से ऐसा होता कि डोज भी बढ़ा रहे, चाहे वो 10-15 लोग ले भी आए, वहां पे बिठाएगा कहाँ पर जब वो है ही नहीं, चाहे जितने मर्जी वो फ्रेंड्स ले आए, बट द सीट इज नो लॉन्गर देयर
right? So there is, more dose definitely will be required, but कोई फायदा नहीं है because the response is never going to be the same. ठीक है? So this is the difference in the competitive graph and the non-competitive graphs that you have to understand. Coming to the fourth graph, which is again similar lines जो हमने पहले किया है, which has already was asked, like A, B, C, तीन graphs दी हैं and response log dose हैं. Let's see what the question is. Which of the following statement is correct regarding the given dose response curve? I hope you'll be able to answer this now. Let's see the first option. A is more efficacious than B. Can we say that A is more efficacious than B? Efficacy means this maximum response. So you can see here कि B का रिस्पॉन्स A का रिस्पॉन्स इधर है और B का रिस्पॉन्स इधर है. ठीक है? सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट A इज नॉट एट ऑल मोर एफिकेशियस बिकॉज मैक्सिमम रिस्पॉन्स A का थोड़ा ही बहुत कम है, B का ज़्यादा है. ठीक है? सो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. A and B are full agonists. That means they are producing the maximal response. That can be, because ये maximal response produce कर रहे हैं, that can be the correct thing. देखते हैं अगर और स्टेटमेंट्स क्या है. C इज शोइंग कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म. सो अभी हमने बात की थी C कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म में कभी ग्राफ नीचे नहीं आएगा, हमेशा वो राइट को शिफ्ट करेगा पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स सेम रहेगा. अगर वो नीचे आ रहा है ग्राफ, दैट मीन्स इट इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागनिज्म. सो अगेन दिस इज रॉन्ग. B इज मोर पोटेंट देन A. Is B more potent than A? Because dose required to produce the response is much more as the dose required, which is dose required by drug A. So B is less potent than. So the answer is A and B are full agonists. Right? So this is how we derive to the answer. So with this, actually, these were the few important graphs which were asked in the previous exams. And some of them, again, they'll be asked on similar lines. So it is very favorite with the, I've seen the image based, जहाँ पे competitive, non-competitive antagonism के graphs आ गए. Then especially these ones, where you have to calculate the therapeutic index. This is also very common. And these are very easy graphs, but this, you need a little more practice with them. That is what it is. And I hope I made these things, the concepts which I've told you कि ये important concepts हैं जो आपको आने चाहिए, and you should revise them time and again. So if you like the video, so please hit the subscribe button, and I will see you again next week, every Wednesday and Saturday. See you. Bye.